Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish, the show where we give you science based advice about astrology and numerology from world renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. This is the first show of 2025. So we ought to wish our viewers a very, very happy new year. Very happy new year to you too, Prem ji. Happy New Year to you, Dipti, and Happy New Year to everyone who's watching the show. And thank you for your email and response. Yes, thank you so much for sending in those beautiful email queries that Premji has been responding to. And before I forget to introduce myself, I'm your host for today, Dipti Mehta with Shri Prem Jyotish ji. So this is 2025. To begin with, I would like to ask you, what does 2025 mean in terms of numerology? And are there any strong planetary changes that we should be worrying about, being excited about? What does 2025 say to us? So 2025 जो numerology wise अगर हम देखते हैं जी 2025 adds up to 9 basically which is a year of Mars. तो 9 नंबर है numerology wise basically जिन नंबर लोगों का नंबर 9 है जो 9th 18th और 27th को पैदा हुए हैं तो वो उन लोगों के लिए ये 2025 numerology wise is very powerful. And number 9 is a number of Mars. मंगल का ये number है. Mars is basically a change, and Mars is also basically will bring lot of basically जो ये overall Mars is violence and जो war जो ये trouble है पूरी दुनिया में. तो जब भी मंगल का साल आता है तो ये नहीं कि वो वॉर और इन चीज़ों को और बढ़ाता है बल्कि उन चीज़ों के लिए पीस और उन चीज़ों को काम करना शुरू कर देता है. तो न्यूमरोलॉजी वाइज ये दिखाएगा भी नंबर 9 क्या रूल करता बिकॉज द नंबर ऑफ गॉड इज़ ऑल्सो अ 9 एंड एनी नंबर यू मल्टीप्लाई विद द 9 तो नंबर 9 जो है वो हर नंबर को सपोर्ट करेगा. इसे अगर आप 5 नंबर हैं तो 5 into 9 45 5 nines are it comes into 45 that's added up to 9 as well too. 2 9s are 18 1 plus 8 is 9 too. Wow. So which is this is a very numerology wise it's going to support each and every number this year with then everyone will see a very positive outcome. एंड एस्ट्रोलॉजिकली वाइज देखिए जो मेजर जो ट्रांजिट है 2025 में वो है सैटर्न जो है मूव करेगा एक्वेरियस से पाइसिस में इस साल के अंदर जो कि मार्च 15 के बाद दिस ईयर में वो चेंज आना शुरू हो जाएगा. एंड सैटर्न जो है आपकी वो वेल्थ से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है रियल स्टेट से जुड़ा हुआ है. तो फाइनेंशियल मार्केट में रियल स्टेट में शनि के चेंज होने से बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होंगे. थोड़ा सा स्लो करेगा ग्रोथ को शनि. तो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल इन 2025. सो एनीथिंग यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ बेसिकली buying or selling by real estate or investing and everything, don't do it before March this year. Do it after the March till the Saturn transition will change. So that is also gonna make a lot of globally बहुत सारी चेंजेस आएंगी लोगों के अंदर एंड फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होंगी. जो पिछले 2.5 years से जो अनरेस्ट चल रहा है ओवरऑल तो सैटर्न गोइंग टू पाइसेस गुरु की शरण में जब शनि जाता है तो कहते गॉड इज ब्रह्मा विष्णु तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू होगा ग्लोबली एक्चुअली. So it looks like we have a lot to look forward to in 2025, numerology wise and astrology wise. That is so wonderful to hear first week of January, right? And I have a question, Premji. Does it, because most of the times we talk about wealth and health and all of these things, but how do children get impacted? चिल्ड्रन देखिए ऑफ कोर्स चिल्ड्रंस के ऊपर भी क्योंकि मार्स मंगल जो है न्यूमरोलॉजी वाइज एंड 2025 में शनि का जो ट्रांजिशन है पाइसिस में आना तो वो बच्चों के ऊपर भी मतलब जो स्ट्रेस लेवल है जो नेगेटिविटी है उस चीज़ों को कम करेगा. बिकॉज अभी शनि एक्वेरियस में है करंट नाउ एंड कुंभ राशि में अपने ही प्लैनेट जब सैटर्न आता है तो एग्जॉल्टेड हो जाता है तो जिसमें वो करेक्शन करनी शुरू कर देता है.
सैटर्न इज ऑल्सो जुड़ा हुआ है संतान से भी, बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, नेचर से भी, मदर नेचर से भी शनि जुड़ा रहता है। सबसे ओल्डेस्ट जो प्लैनेट इज सैटर्न। तो ऑफ कोर्स जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, जो इमोशनल हेल्थ पे वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। 2025 is going to be 5 times better than 2024 actually. That is... in terms of basically not the success and peace and happiness and everything, जो एक hate, जो एक negativity जो रही है, उन सब चीज़ों में हमारे को रिलीफ दिखना शुरू हो जाएगा। Thank you so much, Premji, for sharing those amazing predictions for 2025. On that wonderful note, we are going to go for a short break. But don't leave, because we'll be right back and then we'll share yearly predictions for zodiac signs. In the meantime, if you have a query or a question, don't forget to email us at prem@premjyotish.net. We'll be right back. Welcome back from the break to One-on-One with Prem Jyotish. Premji, thank you so much for sharing the overarching predictions for 2025. I'm sure our viewers are really eager to hear the yearly predictions of their zodiac signs. So let's begin with Aries. देखिए एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए 2025 में ग्रोथ रहेगी, काफ़ी ऑप्टिमिज्म रहेगा आप लोगों का। अर्ली ईयर में ही आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करके रखना चाहिए, खास करके डेवलपमेंट जो अपनी आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। फोकस बना के रखिए अपने करियर में, लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर। पेशेंस रिक्वायर होगी क्योंकि थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उसमें से निकल जाओगे। आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप रिलेशनशिप है, बैलेंस बना के रखिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर। थोड़ा सा आप लोगों को बर्नआउट भी करना चाहिए क्योंकि 2025 जो है न्यूमरोलॉजी वाइज मंगल का साल है और आप लोग एरीज इज गवर्न बाय द मार्स। तो थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योगा करिएगा ताकि जो हाई एनर्जी है वो आपकी बॉडी को तंग ना करे। आप खुद को एंग्शियस मत बना के रखिएगा। वर्कआउट जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर है आप लोगों के लिए। What do our Taurians have in store for 2025, Premji? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए 2025 में वेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जब गुरु की जुपिटर की पोजीशन जो मिड ईयर में आप लोगों के लिए चेंज होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी एजुकेशन में चैलेंज आ सकता है, स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा आपका। हार्ड वर्क बहुत सारा करना पड़ेगा क्योंकि मेहनत बड़ा कराएगा टॉरस वालों लोगों के लिए, बट उसकी आउटकम बहुत अच्छी आप लोगों को दिखेगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत सारी आएंगी, खास करके प्रोफेशनली स्टेबिलिटी काफ़ी बनी रहेगी और एक रिकॉग्निशन भी आप लोगों को बहुत बड़ा मिलेगा। आपका जो मेन फोकस जो है अपनी फिजिकल और मेंटल बैलेंस के ऊपर आप लोगों ने बना के रखना है। स्पेशली बहुत सारी मेजर ट्रांजिशंस आपकी लाइफ में खास करके मिड ऑफ द ईयर में 2025 में आप लोग देखेंगे। And what about the Geminis this year? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए 2025 में बेनिफिश रहेगा आपको करियर ग्रोथ को लेके, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, खास करके जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही आपको अपने इन करियर में, ग्रोथ में, रिकॉग्निशन में चेंजेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। चैलेंजेस रहेंगे आप लोगों को पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप के अंदर, तो थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी हार्मनी लेके आइएगा, नेगेटिव मत बोलिएगा और फोकस बना के रखिएगा, खास करके अपने बेसिकली फाइनेंसेस को लेके और किसी तरह के भी, क्योंकि क्या होगा कि इस साल में आप थोड़ा सा जल्दबाजी में भी थोड़े डिसीजन लेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, तो थोड़ा सोच समझ के किसी तरह का भी डिसीजन लीजिएगा क्योंकि इस साल में आपका जो मेन फोकस है आपने अपनी एंग्जाइटी और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। और जो स्ट्रेस रिलेटेड जो काम है, जो किसी तरह के भी जो है जिसमें आपको खुद को लगता है, वो आपको बिल्कुल 2025 में अवॉइड करने चाहिए। I'm sure my Cancer zodiac viewers are really eager to hear their annual predictions. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो 2025 है आपका जो मेन फोकस जो है सोशल सर्कल में, नेटवर्किंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। प्रोफेशनल ग्रोथ काफ़ी बड़ी है आप लोगों के लिए। चैलेंजेस रहेंगे वर्क लाइफ में, चैलेंजेस इस तरीके से रहेंगे कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा।
थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम आपको पर्सनल ग्रोथ अपनी इनर पीस को लेके। हाँ, जो लोग सिंगल है, वो जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो दिस ईयर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर लव एंड द फैमिली मैटर्स को लेके काफ़ी इमोशनली डीपर कनेक्ट बनेगा आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर। सो बेसिकली इट्स वेरी वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप मैटर, खास करके कैंसर लोगों के लिए। देखिए, कैंसर वालों के लिए मून जो है मेजर लॉर्ड है, तो मून के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा स्ट्रेस को थोड़ा आप योगा करें या किसी तरह की भी जो इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज जो है, ताकि मेंटली थोड़ा काम रहें, क्योंकि जितना काम रहेंगे उतना आपको सक्सेस इस साल में दिख सकता है। What about the leaders of our world, the Leos? What are their predictions, Prem ji? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए 2025 जो है, जो क्रिएटिविटी, रोमांस और जो फेवरेबल पीरियड है, आर्टिस्टिक जो परस्यूट्स हैं उसमें और लव लाइफ में भी आप लोगों को काफ़ी बड़ा बेसिकली सक्सेस मिलेगा। इट मीन्स जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी हो जाएगी, जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ थे, जिन लोगों में हार्मनी थी फैमिली में, पार्टनरशिप में, उसमें काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बट आपका मेन फोकस आपकी हेल्थ पे होना चाहिए। जो आप लोगों की डेली रूटीन है उस पर आपको काम करना चाहिए। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो फिज़िकल हार्ड वर्क की काफ़ी ज़रूरत होगी 2025 में, जिसकी आउटकम बहुत अच्छी है। आपका जो करियर एडवांसमेंट है, थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, लेकिन मिड ऑफ द ईयर में खास करके जून जुलाई के बाद से बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। जो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें 2025 में बहुत बड़ा आपको उसमें फ़ायदा दिखने वाला है। बट एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इम्पल्सिव जो स्पेंडिंग है उस पर भी थोड़ा फोकस बना के, मतलब जोश में किसी तरह का भी खर्चा मत करिएगा। अगर कोई भी डिसीजन स्पेंडिंग के लिए लेना है तो डोंट आंसर द सेम डे, उसको 24 और 48 आवर्स के बाद ही उसका आंसर करिएगा। What about the critiques, the Virgos? They want to know what's in store for 2025. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए 2025 के अंदर जो है शुरुआत में ही काफ़ी ग्रोथ होगी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेके, खास करके फैमिली मैटर्स में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम आपको अपने करियर के ऊपर भी फोकस बना के रखना चाहिए। थोड़ा हार्ड वर्क, आपको थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा लाना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक अफेयर में, अपनी फैमिली मैटर्स को लेके, और थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा इस साल के अंदर, तभी जाके आपको पॉजिटिव आउटकम दिखेगी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर प्रोग्रेस में काफ़ी बड़ी, प्लानिंग और थोड़ा आपको पूरा स्ट्रेटजाइज करना चाहिए अपने आप को। ये नहीं कि आप एक पाथ पे चलना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आप लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए फिज़िकल हेल्थ को लेके भी थोड़ा, और अपने स्ट्रेस के ऊपर भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम करना चाहिए। Thank you so much, Premji, for sharing those annual predictions for the first 6 zodiac signs. Now it's time for the short break, but it's going to be really short, and we'll be back with the yearly predictions for the rest of the 6 zodiac signs. So don't go anywhere. Send us the emails with your questions and queries at prem@premjyotish.net. Thank you so much for staying with us. We'll be right back. Welcome back from the break. We are in 2025, the wonderful year, and we want to know what this year is going to have in store for us. So it's time for the predictions, annual predictions for the next 6 zodiac signs. Premji, let's begin with Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो 2025 है वो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। मटेरियल सक्सेस मिलेगा, सिक्योर करेंगे आप वेल्थ को, यानी प्रॉपर्टी गेन होगा। लेकिन चैलेंजेस थोड़े रिलेशनशिप में बने रहेंगे, जिसमें आपको थोड़ा फिक्स करना है। यू नीड टू ट्रस्ट करना है आपने अपने पार्टनर, और थोड़ा कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का बेटर होना चाहिए 2025 में, लेकिन उसी की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रोग्रेस बहुत पॉसिबल है, बट सिग्निफिकेंट जो है एफर्ट चाहिए, बैलेंस करके रखना है आपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को 2025 के अंदर। प्रोफेशनल एंड जो पर्सनल लाइफ है काफ़ी सारी डिमांड करेगी आप लोगों के लिए 2025 में, तो इसीलिए आपको जो बैलेंस है वो पूरा करके रखना है 2025 में। इमोशनल बैलेंस भी ऑल्सो जो है की रहेगी इस साल के अंदर, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छे आउटकम आएंगे। What about the Scorpions this year?
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए फेवरेबल ईयर है। आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन्स को लेके मटेरियल प्रोग्रेस बनी रहेगी, स्पेशली अर्ली इन द शुरुआत के ही आपके ईयर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका फोकस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे रहना चाहिए, खास करके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा प्रेशर रहेगा आप लोगों को, जो आपकी जो थोड़ी बैड हैबिट्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए। सो यू नीड ए स्पिरिचुअल हेल्प दिस ईयर ऑल्सो। बट आपको फोकस अपने करियर पे रखना चाहिए, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करिए अपने करियर को, ताकि आपके करियर मूव्स में आपकी पोटेंशियल ग्रोथ हो 2025 के अंदर। और थोड़ा आपको अपनी हेल्थ को लेके थोड़े स्ट्रेस मैटर्स को, इश्यूज़ को लेके भी फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से बैलेंस रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ में, जब और कि आपकी हेल्थ भी काफ़ी बेटर हो जाएगी। देखिए स्कॉर्पियो वालों को भी मार्स रूल करता है और 2025 न्यूमरोलॉजी वाइज मार्स है, तो इसलिए थोड़ा एग्रेशन और एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए आपको थोड़े स्ट्रेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज और इन चीज़ों पे भी फोकस बना के रखना चाहिए। How about Sagittarius for 2025? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए 2025 में ग्रोथ रहेगी पार्टनरशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, स्पेशली अर्ली ईयर में ही आपको ये आउटकम दिखनी शुरू हो जाएगी। बट लेटर आपको फोकस अपना करियर और पब्लिक लाइफ में भी करना है, क्योंकि रिकॉग्निशन मिल सकता है आप लोगों को। फोकस रखिए फाइनेंशियल और मटेरियल स्टेबिलिटी में। हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी एसेट्स को सिक्योर कर पाएंगे। पोटेंशली सिग्निफिकेंट करियर एडवांसमेंट हो सकता है, तो उसके लिए चैलेंजेस को लेके भी थोड़ा आप प्रिपेयर रहिएगा। ये साल है कि जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान रखें और अवॉइड करिएगा कि ज़्यादा ओवर काम मत करिएगा, क्योंकि कम काम में ही आपको सेम आउटकम दिख सकता है। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए 2025 में जो है ग्रोथ होगा करियर में, पर्सनल अचीवमेंट्स होंगी, पब्लिक रिकॉग्निशन भी आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा आप फील प्री प्रेशर रहेंगे किसी तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते समय। काफ़ी सारे एरियाज़ जो है लाइफ में थोड़ा सा आप जो है प्रेशर में आ जाएंगे, बट पॉजिटिव रहेंगी थिंकिंग आपकी, सिक्योर करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा इस साल के अंदर। एंड थोड़ा आप अपनी हेल्थ पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करिएगा, और किसी तरह के भी जो गोल्स हैं, किसी तरह की भी कोई छोटी सी चीज़ है उसको निगलेक्ट मत करिएगा। हर चीज़ के ऊपर आपको फोकस बना के रखना है, क्योंकि ग्रेट आउटकम दिखने वाली है आप लोगों को अपने करियर में और पर्सनल लाइफ के अंदर। And how about the water sign Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए 2025 में काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि शनि कुंभ राशि से निकल के अभी मीन राशि में चला जाएगा मार्च के बाद से। बेनिफिशियल रहेगा सेल्फ ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट रहेगी, क्रिएटिविटी में काफ़ी फ़ायदा होगा। स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो सैटर्न की जो प्रेजेंस है थोड़े चैलेंजेस लेके आती है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन पे आपने काम करना है, गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू करते रहना है जी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने फोकस बना के रखना है पर्सनल गोल्स के अंदर। एक्सपेक्ट करिएगा थोड़े चैलेंजेस आपकी वर्क लाइफ में आएंगे, लेकिन आप उनको बैलेंस कर पाओगे। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ है जो आप लोगों की, उसके ऊपर भी फोकस बना के रखना है, पर्टिकुलरली ड्यू टू स्ट्रेस। जो सैटर्न का जो कई बार स्ट्रेस इन्फ्लुएंस होता है वो एक्वेरियस लोगों के लिए क्योंकि ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उनका जो सैटर्न इज गवर्न बाय एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एक्चुअली। And how about the water dwellers, the Pisceans for 2025? पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए 2025 में काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगी, क्रिएटिविटी में काफ़ी फ़ायदा होगा, एंगेज करेंगे आप आर्टिस्टिक परस्यूट्स के अंदर, और चैलेंजेस रहेंगे करियर में, पब्लिक लाइफ में भी रहेंगे, बट हार्ड वर्क की वजह से आपको काफ़ी आप मेंटेन करेंगे स्टेबिलिटी। लेकिन आपको जो अपना फोकस है लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर बना के रखना चाहिए। आपकी जो ग्रोथ है एक्सपेक्ट करिएगा ग्रेजुअली होगी, बड़े क्विक रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको 2025 के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम में पाइसेस इज गवर्न बाय द गुरु, और शनि गुरु में आएगा, तो एम्फेसाइज करिएगा सेल्फ केयर को, स्पेशली मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ को लेके। और आप अपने बच्चों को लेके भी थोड़ा कंसर्न रहेंगे, लेकिन ज़्यादा वरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2025 में मोस्ट ऑफ द उनसे जुड़ी चीज़ें मे बी वैनिश हो जाएंगी। Thank you so much, Premji, for sharing those annual predictions for all of our zodiac signs. I hope all of our viewers loved what they heard for their zodiac signs. Premji, I had a question. I know you mentioned that 2025 is going to be great because of the influence of Saturn moving in, right?
but also Rahu has some impact in 2025. So how do the two of them interact? Is there some kind of balancing act? What is going to happen? Of course, Rahu is also gonna come out of the Pisces also. And but जब भी Rahu Pisces से निकलता है, Pisces is governed by the Jupiter. So Jupiter is positivity. So when the Rahu is in Pisces, it creates a Guru Rahu Chandal Yog too. And जो कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में, मेंटल हेल्थ में उसका इम्पैक्ट बढ़ा हुआ है. पार्टनरशिप्स को वो गड़बड़ करता है. इट मे गिव्स यू एंक्शियसनेस, आप एंग्जाइटी में रहोगे बिकॉज ऑफ द राहु. बट May 15 को वो भी चेंज कर जाएगा. इट विल कम आउट ऑफ द Pisces एंड इट्स गोना मूव इनटू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव साइन में वो चला जाएगा. तो जो कि बहुत अच्छा करेगा. इट गो बैक टू द बेसिकली एक्वेरियस में चला जाएगा, वापस आ जाता है, एक घर पीछे चला जाता है राहु. तो वो भी मई के बाद से भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. लोगों के काम में, आपकी पार्टनरशिप में, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके मैरिज के योग को भी वो पॉजिटिव करना शुरू कर देता है. सो 2025 इज़ अ वेरी वेरी यूनिक ईयर कंपेयर टू 2020, 21 and 23 and 24 because it's gonna be something which we are all going to remember in terms of positive things. Wonderful. So what I'm hearing is between March and May is a little bit of an unbalanced time. After that, things calm down. So if you're a married couple, don't fight during March and May or any couple, right? किसी तरह का भी कोई भी जो डिसीजन है आप मार्च और मई एंड तक का मेजर मत लीजिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए. Right. Because you will see definitely a different outcome, especially when the Rahu shift will happen. That's such a wonderful advice to have, right? Like before you go in, you know that these 2 months are going to be hard. Given that we've had this beautiful advice, are there any remedies that you recommend or any things that all the zodiac sign, viewers should do to make their year better? देखिए, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी वाइज 9 नंबर है तो मंगल है. मार्स के दिन, ट्यूसडे के दिन आप जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं उसको आप प्रे करिए. आप उस दिन बेसिकली ट्राई टू स्टे वेजिटेरियन ऑन दैट डे. एंड जितनी भी आप डोनेशन कर सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं, आप ट्यूसडे के दिन करिए. चाहे वो कोई भी मदद, ये नहीं कि आपको बाहर जाके किसी का करना है, फैमिली में भी लोग होते हैं. Right. आप जिस तरह की भी हेल्प कर सकते हैं, यू शुड डू दैट ऑन ट्यूसडे टू. एंड शनि और राहु का परिवर्तन है तो once a month everybody should look into a mustard oil. उसको स्टील बाउल में डाल के अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखें, उसमें एक क्लोव डाल के उसको बाहर किसी ट्री ट्रंक पे गिरा दें ताकि शनि छाया जो है, कहते हैं मस्टर्ड ऑयल में छाया पात्र करने से आपकी नज़र और नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है. एंड वो करते रहना चाहिए. राहु के लिए गुरु इज़ फूड, तो खाना डोनेट करें थर्सडे के दिन. अन्नदान करना चाहिए. जितना आप करोगे उतना बेनिफिट आपको करेगा. ये नहीं कि आप रिलीजियस प्लेस में जाके हमको करना चाहिए, वी गो टू हम जाके फूड की डोनेशन करते हैं, बट in religious places we don't see a homeless people. Right. So you should give it the food to people actually they are on street, जिनके पास नहीं है कुछ वो करने के लिए, तो वो ज़रूर करते रहना चाहिए. एंड मार्स ईयर है और शनि और राहु का चेंजेस है, तो ट्राई टू ऑल्सो जुपिटर थर्सडे के दिन आप जितना वेजिटेरियन रहें या जितना भी गॉड को प्रे कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए. और अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु इज़ बेसिकली योर ओन पेरेंट्स. जो आपके आसपास की जो बड़ों की जो एनर्जी है वो जुपिटर से देखी जाती है. सो दैट वे यू कैन मोनेटाइज दिस 2025 karmically in a very very positive way. Wonderful. I'm so inspired to hear all these things because they are wonderful things to do for yourself. It's like self-care, right? Like building good karma, donating. Charity begins at home, so supporting your family members. अगर कुछ और नहीं होता है तो finding some homeless people that you can give food to, and just being vegetarian for a day or two here or there. That's so easy to do and it has such a huge impact. Thank you so much, Premji, for sharing these wonderful remedies, for the annual predictions, for the overarching prediction for the year. I'm sure our viewers are very happy to hear all of these things. It's time to unfortunately end this wonderful show.
Thank you so much for tuning in to One on One with Prem Jyotish. Don't forget, if you have queries or questions, you can email them at prem@premjyotish.net. Thank you so much for being with us. We'll be back next week with some more insights, remedies, and predictions. This is Dipti Mehta with Shri Prem Jyotish Ji saying Namaste.